The protein folding is a complex process where a linear sequence of amino acid rearranges into a functional three-dimensional structure. We all know that during the process of translation, when a single polypeptide chain is synthesized, that single polypeptide chain is unable to function all the functions of a protein because a newly synthesized polypeptide chain unable to unable to work like a catalyst to initiate a biochemical reactions. So at first it is very necessary to achieve a native conformation for a protein molecules. During the course, this linear and we can say or unfolded the protein molecule, the polypeptide chain, and gradually converts into the a native conformation. तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब कभी भी आप जानते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो जो नव संश्लेषित यानी न्यूली सिंथेसाइज्ड जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वह एक लीनियर फॉर्म में रहती है जो कि अपना कार्य करने में अनेबल होती है और वो अपना कैटलिस्ट की तरह फंक्शन नहीं कर पाती है। तो प्रोटीन की जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कि जब तक कि प्रोटीन अपना इग्नेटिक कन्फर्मेशन नहीं लेता है। We all know that about the primary and secondary and the tertiary and the quaternary structure of the protein molecules. In the newly synthesized protein polypeptide chain, and this newly synthesized polypeptide chain only shows the primary structure of protein. And what is the primary structure of protein? And the primary structure of protein means the sequence of amino acid in a polypeptide chain. क्योंकि जब कभी भी नई एक polypeptide chain बनती है तो उसमें जितने भी newly synthesized जो एमाइनो एसिड्स होते हैं वो लीनियर फैशन के अंदर ऐड होते जाते हैं। तो नव संश्लेषित जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें हमें केवल एक इंफॉर्मेशन मिलती है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन दैट पॉलीपेप्टाइड चेन एंड व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड इन ए पर्टिकुलर न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आफ्टर अचीविंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिस प्रोटीन and achieve a native conformation and gradually means the primary structure of protein converts into the secondary structure and then that polypeptide chain achieve the tertiary structure and the quaternary structure protein on the basis of the sequence and the composition of the amino acids. So here I want to say that newly synthesized protein is an unorganized and unfolded and inactivated polypeptide chain, and after the course of the condensation and achievement of the protein folding process that polypeptide chain achieve a native conformation of a protein. And here in between these two states of a polypeptide chain and the linear unfolded polypeptide chain and fully folded completely native conformation of protein, between these two processes some of the middle conformation arises that is just intermediate between the newly synthesized polypeptide chain and the native polypeptide chain. तो जब कोई polypeptide श्रृंखला सीधी होती है तो वह नॉन फंक्शनल होती है, वो अपना काम नहीं कर पाती है और तो धीरे धीरे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग प्रोसेस वो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करती है, एक कंप्लीट फोल्डेड और हाईली एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में एक स्टेज ऐसी आती है जिसको हम इंटरमीडिएट कह सकते हैं या मध्यवर्ती अवस्था कह सकते हैं। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, अगर हम इस न्यूली पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन चेन है उसको आप कैसे मान लें कि वो एक सीधी चेन है स्टेट एंड देन आफ्टर द कन्फर्मेशन एक्वायर ए completely folded or the functional protein. Here is the introduction of the molten globule and what is the mean of the molten globule. Molten globules are the intermediate stage between the unfolded polypeptide chain and the fully folded or the native conformation of the protein molecules. In the molecular biology, the term the molecular globule refer to the protein state that are the more or the less compact, hence the globule, but are lacking the specific tight packing of the amino acid residues which creates the solid
state like the tertiary structure of a completely folded protein. तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उससे जब कभी भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो उसके बीच में जो इसके मध्यवर्ती जो स्टेज आती है, इंटरमीडिएट स्टेज, जो कि कंप्लीटली टर्शियरी फॉर्म में नहीं आई है और अभी उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, सच काइंड ऑफ conformation is called as the molten globule. Here I am defining the condensation state and the represent an early intermediate in protein folding, a compact intermediate in which the tertiary structure of protein is lost but the secondary structure are intact or even the strengthened. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी हम ये कहेंगे प्रोटीन फोल्डिंग प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड द पीएच ऑफ द मीडियम, तो जब कभी भी हम टेम्परेचर या पीएच की वैल्यू को जो बदल देते हैं तो मोल्टन ग्लोब्यूल से नेटिव कन्फर्मेशन या मोल्टन ग्लोब्यूल से अनफोल्डेड चेन में कन्वर्जन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहां पर ये मार्क में बता रहा हूं कि जो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इट अराइजेज फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ द polypeptide chain into a compact structure driven by the hydrophobic interaction. हम जानते हैं कि अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं और कुछ हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से क्या होगा, प्रोटीन का फोल्डिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है, द अनफोल्डेड चेन एंड प्री मोल्टन ग्लोब्यूल एंड दैट कन्वर्ट इनटू द मोल्टन ग्लोब्यूल और एंड देन दिस मोल्टन ग्लोब्यूल which is the semi folded or the semi native conformation and that this is converted into the 3D native conformation of the protein molecule. And in the you can understand about the entropy or the energy level of a protein molecule. जो जब कभी अनफोल्डेड जो प्रोटीन होती है, अनफोल्डेड प्रोटीन, इसमें क्या होगा, इसका एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है। इस डायग्राम आप देख पाएंगे यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको अनफोल्डेड प्रोटीन के, ये जो अनफोल्डेड जो प्रोटीन है इसका एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है और जब जैसे जैसे ये कन्वर्ट होती रहेगी अनफोल्डेड से मोल्टन ग्लोब्यूल में, इसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। देन मोल्टन ग्लोब्यूल होता है आफ्टर रिसीविंग ए पर्टिकुलर एनर्जी, ये क्या होंगे, नेटिव स्टेट के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा। तो कहने की बात है कि ये जो इनिशियल यानी कि अनफोल्डेड द बिगिनिंग स्टेट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन और द नेटिव स्टेट जो लास्ट कंप्लीटली फोल्डेड द प्रोटीन है, इन दोनों का जो एनर्जी लेवल है इसका जो कंपेयर करते हैं मोल्टन ग्लोब्यूल, तो ये मोल्टन ग्लोब्यूल क्या है, इनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, इंटरमीडिएट बिटवीन द अनफोल्डेड और द नेटिव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। तो इसकी आप जो डिटेल है लेविंथल पैराडॉक्स टॉपिक के अंदर और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम टॉपिक को कन्फाइंड रखते हैं मोल्टन ग्लोब्यूल और मोल्टन ग्लोब्यूल के इफेक्ट पे। देन एंड यहाँ पर आप देखेंगे द प्रोटीन द डीनेचुरेस क्लाइमेटिक फैक्टर्स कंट्रोल दिस स्टेबिलिटी ऑफ द मोल्टन ग्लोब्यूल, that is the pH and the temperature and the salinity. We all know that the protein and the enzyme function on a particular the pH and the temperature salinity level. तो यहाँ पर आप इस नीचे डायग्राम में आप देख पाएंगे इस ग्राफ में, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे प्रोटीन की फोल्डिंग होती है वो बढ़ती जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटीन की फोल्डिंग बढ़ गई है और उसके बाद में क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, आफ्टर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर दिस फोल्डिंग प्रोसेस द डिक्रीज कंटिन्यूअसली विद द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। And similarly, the pH density of the hydrogen ion also affect the protein folding process. जैसे जैसे हम pH की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो प्रोटीन की फोल्डिंग क्या होती है, इस ग्राफ के साथ साथ में वो इसकी पीक पे आते ही मैक्सिमम फोल्डेड प्रोटीन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम pH। अब ऑप्टिमम pH की वैल्यू से अगर हम और हाई लेवल पे अगर pH को बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोटीन है कंटिन्यूसली क्या होगी, अनफोल्डेड कंडीशन में आने लग जाएगी। यानी कहने की बात, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर जो pH की वैल्यू होती है वो डिसाइड करती है कि जो प्रोटीन है उसका कन्फर्मेशन क्या है, नेटिव कन्फर्मेशन है या मोल्टन ग्लोब्यूल का कन्फर्मेशन है या अनफोल्डेड प्रोटीन कन्फर्मेशन है। तो biological significance of this condensation process, the intermediate state, as I am saying about the molten globule is the intermediate state of the folding process, play key role in the protein folding kinetics, stability and the function। तो प्रोटीन का जो फंक्शन है या हम कहते हैं स्टेबिलिटी और काइनेटिक्स यानी कि एनर्जी लेवल होता है, इसका डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। दे फैसिलिटेट एफिशिएंट फोल्डिंग बाय रिड्यूसिंग द सर्च स्पेस एंड अवॉइडिंग काइनेटिक ट्रैप्स है। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या
रहता है इस मोल्टन ग्लोब्यूल की हम इंपॉर्टेंस की बात करें, क्योंकि ये मोल्टन ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर होते हैं। इससे क्या होगा, इसमें कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम एनवायरमेंटल टेम्परेचर को, क्लाइमेटिक टेम्परेचर और पीएच को जब हम बदल देंगे या सैलिनिटी को बदल देंगे तो क्या होगा, तो मोल्टन ग्लोब्यूल है कैन अचीव ए न्यू the folding process also. So this is molten globule is the intermediate and we balance and the protein conformation between the unfolded or the highly folded protein molecule. The dysfunction in the intermediate state, the formation can lead to the protein misfolding disease. तो इसमें जब कभी भी प्रोटीन में मिसफोल्डिंग हो जाती है तो इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिजीज क्रिएट हो जाती है, जिसके बारे में अभी आप समझेंगे ये कौन कौन सी डिजीज हो जाती है। जैसे अल्जाइमर डिसीज की बात करें, अल्जाइमर्स डिजीज, इसमें क्या होता है, द पैथोलॉजिकल प्रोटीन कौन सी थी, एमाइलोइड बीटा है ना, एंड टाउ प्रोटीन होता है। तो जब ड्यूरिंग द प्रोटीन फोल्डिंग प्रोसेस द एमाइलोइड बीटा एंड द टाउ प्रोटीन है, इसमें अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी तो उससे क्या होगा, अल्जाइमर्स डिजीज हो जाएगी। मैकेनिज्म क्या, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग हियर इन डिटेल। द एग्रीगेशन ऑफ into the insoluble and the plaques and the hyperphosphorylation of the tau leading to the formation of the neurofibrillary tangles. Neurofibrillary tangles बनने से क्या होगा, न्यूरॉन्स अब अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे। The clinical feature is the progressive cognitive decline and the memory loss and the behavioral changes है। And other प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीज इज द पार्किंसन डिजीज होती है। इस पार्किंसन डिजीज में विच काइंड ऑफ द प्रोटीन इज अफेक्टेड, द अल्फा साई न्यूक्लियन and protein is highly affected in the Parkinson disease. The mechanism is the aggregation of the alpha nuclein into the Levy bodies, which are intracellular protein aggregates. And in the clinical, the feature, which kind of the symptoms or abnormalities that they created during this Parkinson disease is the motor symptoms like the tremors and the bradykinesia, rigidity, and the posture instability. और यहाँ पर आप देखेंगे जो हंटिंगटन डिजीज है, इसमें क्या होगा, हंटिंगटन डिजीज में HTT द प्रोटीन विद एक्सपेंडेड पॉलीग्लूटामाइन रिपीट्स। पॉलीग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन इज ए अमीनो एसिड वी ऑल नो, एंड व्हेन ए स्ट्रेच इन द पॉलीपेप्टाइड चेन विद द रिपीटेड यूनिट ऑफ द ग्लूटामाइन इज प्रेजेंट, सच काइंड ऑफ स्ट्रेच इज कॉल्ड एज द पॉलीग्लूटामाइन रिपीट्स। द मैकेनिज्म इज द एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेंट HTT, मीन्स हंटिंगटन द प्रोटीन एग्रीगेट्स इन द न्यूरॉन्स। उस न्यूरॉन में क्या होगा, HTT प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा विच लीडिंग्स टू द सेल डिसफंक्शन और द डेथ, सेल की डेथ होने लग जाएगी। और इसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिव मोटर एंड द डिसफंक्शन एंड द कॉग्निटिव द डिक्लाइन इन द साइकेट्रिक सिम्टम्स है वो जनरेट हो जाते हैं इस डिजीज में। तो यहाँ पे अभी हम जो आपने पढ़ा द मैकेनिज्म की बात करें, द प्रोटीन में द जेनेटिकल म्यूटेशन, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीज। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज द जेनेटिकल डिजीज है रीजन, एंड द म्यूटेशन इज द स्पेसिफिक जीन, म्यूटेशन इन द स्पेसिफिक जीन एनकोडिंग द प्रोटीन। हम जानते हैं कि क्या होगा कि पर्टिकुलर क्या होता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए में जब कभी ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनती है। अगर डीएनए में किसी तरह का अगर म्यूटेशन हो जाएगा, if the mutation create in a DNA molecules in this condition by the process of transcription, the mRNA, the abnormal mRNA is synthesized, and that abnormal mRNA and synthesizes the abnormal protein molecule which is unable to function like a proper the catalyst or the active catalyst. तो genetical mutation का reason हो सकता है। The protein overproduction, increased production of specific protein, कोई प्रोटीन है उसका specific production अगर बढ़ जाए, can overwhelm the cellular quality control mechanism। तो जो सेल का जो क्वालिटी कंट्रोल है वो सिस्टम है वो फेल हो जाता है प्रोटीन के ओवर प्रोडक्शन की वजह से, that leads to the misfolding and the aggregation. And the third important reason of misfolding is the protein conformational changes, the environmental factors and the post-transcriptional modification. And you know about the post-translational modification after the synthesis of polypeptide chain by the process of translation. Some of the modification is created, and that is called as the post-translational modification. Or the cellular stasis can include the conformational changes in the protein and predisposing them to the misfolding. और लास्ट एंड रीजन है इम्पेयर्ड प्रोटीन क्लियरेंस। क्या होता है, द डिसफंक्शन ऑफ सेल्यूलर पाथवे रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन डिग्रेडेशन।
प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन करने के लिए जो सेलुलर और मेटाबॉलिक पाथवे है वो अगर एबनॉर्मल हो जाएगा, कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन। तो बॉडी में क्या होगी, मिसफोल्डेड प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो दीज आर द सम ऑफ द रीजन and of the protein misfolding. The protein misfolding disease represent a significant challenge in the biomedical research because it is due to the environmental impact. It is due to the mutation of the genetic material. So it is unable to cure by a biochemical medication, and biotechnological the aspect should be used to cure. And healthcare with the devastating effect on the patient and their families. Understanding the underlying mechanism of the protein misfolding and developing effects, the therapeutic strategies are the crucial for the development of treatment to alleviate the burden of these debilitating disease. Protein folding involves complex stages, including condensation and molten globule states, crucial in the folding pathway. The condensation state is an early intermediate, more compact than the unfolded state, yet lacking well-defined structures. It serves as a critical checkpoint, guiding the protein towards the native state. The molten globule state is a partially folded intermediate, exhibiting increased secondary structure content while maintaining flexibility. It represents a crucial stage where the protein begins to acquire its native-like structure. Techniques like circular dichroism, nuclear magnetic resonance, and fluorescence spectroscopy provide insights into these intermediate states. Intermediate states play key roles in protein folding kinetics, stability and function, and dysfunction in their formation can lead to protein misfolding diseases. Understanding the characteristics and roles of these states is essential for unraveling the mechanisms governing protein folding pathways and addressing protein folding-related diseases.